Hello, my dear students. Welcome to Social Studies class. And we would be continuing with the history lesson number 4, the first cities. This is your second part of history lesson number 4. In the first video, that is the first part of history lesson number 4, I have explained you about what is a pictographic script. I gave one example which was on page number 27, children, that we solved it. Then later on, I explained to you about the timeline, that what was the time frame of the first cities, that is the Indus Valley civilization. Then I made you understand that how these cities came into existence in our Indian subcontinent near the Indus River, that is the Sindhu River, and that is why the civilization is called as Indus Valley civilization. Then I explained you that who excavated the site of this Indus Valley civilization, children, and how we came to know about the two big cities, that is a Mohenjo-daro and Harappa. Also, I explained you that these cities, that is the Indus Valley civilization, started from the borders of Iran, means present day borders of Iran, up to Uttar Pradesh, and so many areas or so many states of India at present we are talking were covered, that is Punjab, Sindh, Baluchistan, Gujarat, Rajasthan, and now some areas of Indus Valley civilization are included in Pakistan, children. And I explained to you that there were two big cities. One is called as what? Mohenjo-daro, and second is called as what? Harappa. Mohenjo-daro was the capital of the southern region of Indus Valley civilization, whereas Harappa was the capital of northern valley, that is the northern region of the Indus Valley civilization. And as these sites were excavated first, and same cities could be found, that is the same construction, same planning, same things were found in the other cities of Indus Valley civilization. So Indus Valley civilization is also called as what, children? Harappa civilization. And here the speciality of Mohenjo-daro was the great bath. You must have seen in the film Mohenjo-daro, which is done by Hrithik Roshan. In that the great bath is shown. And what is the specialization of Harappa? Here big granaries and big structures were excavated during the excavation done by the archaeologist. So understood, children? So now I will start with the page number 30, children, that what were the special features of these cities, कि ये कैसे बनाई गई थी वो टाइम की सिटीज, उसका आर्किटेक्चर कैसा था, उसका डिजाइनिंग कैसा था, उसका प्लानिंग कैसा था. You will come to know that, children, that planning of round about 6,000 years ago, what we can't even do now with the help of machineries, they did all this without the help of any modern technology or electricity or what we say the big machinery. They did everything by hand. And see, you can understand, you will be able to understand that how their intellectual was, children. Intellectual मतलब उन लोगों का कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट दिमाग था कि वो ज़माने में भी, in that period also, they did so much excellent town planning, excellent drainage system, excellent all the beautiful structure मतलब जो बांध काम हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग का, वो सब आप अगर उसका सुनोगे, उसका डिस्क्रिप्शन सुनोगे तो आपको लगेगा कि वाओ, दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ दैट टाइम वाज द ग्रेटेस्ट. सो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस लेसन. ऐसे तो सिटी बहुत सारी है, बट व्हाई वी आर डूइंग, बिकॉज दिस वर द फर्स्ट सिटीज ऑफ अवर वर्ल्ड. Indus Valley civilization were the first cities of the earth, and there were other civilization also, Mesopotamian, Egyptian civilization, Chinese civilization. There were other civilization also at that time only, parallel to that period only. But as it is belonging to India and many sites have been excavated from India, that is why we are doing this Indus Valley civilization. So now we begin with the town planning, children. The first feature is what? Town planning. द हरप्पन सिविलाइजेशन हैड वेल प्लान्ड सिटीज. प्लानिंग के साथ सिटी बनाई थी, ऐसे नहीं कहीं पर भी बिल्डिंग खड़ा कर दिया, कहीं पे भी रोड. दैट वाज अ प्रॉपर टाउन प्लानिंग. ऑल द स्ट्रीट्स कट ईच अदर एट राइट एंगल.
मतलब चौराहा, हर जगह पर 4 रास्ते मिलते थे। वो कैसे होते थे? राइट एंगल जैसा। जैसे आज आपको पता है ना राइट एंगल 90 डिग्री, तो वैसे सब रास्ते एक दूसरे को कट करते थे। आपने शायद आपके कार्टून मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कैसे उन लोग एकदम क्लीन रास्ता बताते हैं, बड़े बड़े रास्ते बताते हैं, राइट एंगल पे कट होता है, चौराहा होता है, दैट वे। हाउसेज वर बिल्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट्स इन अ प्लान्ड वे, एकदम प्लानिंग के साथ हाउसेज बने हुए थे, दो दो माले के हाउसेज थे। बेक्ड ब्रिक्स वर यूज, कैसे ब्रिक्स यूज होते थे? कच्चे नहीं, बेक किए हुए ब्रिक्स। बेक कहाँ होते थे? जो भट्टी होती थी उसमें ब्रेक करते थे, बेक सॉरी। बेक ब्रिक्स वर यूज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स। इट वॉज एन एडवांस्ड अर्बन कल्चर। अर्बन मतलब शहर, शहर का कल्चर था पूरा। देखो अर्बन का उल्टा होता है रूरल, गांव, और अर्बन का मतलब होता है शहर। सो इफ वी सी द प्लानिंग वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट उधर का कल्चर कैसा था, एकदम रिच रॉयल अर्बन कल्चर विथ एफिशिएंट म्युनिसिपल गवर्नमेंट। म्युनिसिपल गवर्नमेंट था वो टाइम पर भी। हाइजीन, हाइजीन मतलब क्लेनलीनेस, एंड सैनिटेशन मतलब कोई भी जगह पर कोई गंदगी नहीं। वर ऑल्सो गिवन वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस। देखो ये बात को देखो, ध्यान रखो, उस टाइम पे भी हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन। आज मालूम है सैनिटाइजेशन का क्या मतलब है? आज आपको एकदम रियल सेंस में पता होगा कि हर चीज़ को हम लोग को क्लीन रखना है, उसको जर्म फ्री रखना है, उसको बोलते हैं सैनिटाइजेशन। क्लेनलीनेस रखना है, हाइजीन रखना है। यू नो दिस करंट सिचुएशन, हाउ दिस पेंडेमिक इज देयर। मोस्ट ऑफ द सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन थे वो सिटी के 2 भाग होते थे। हायर लेवल पे कंस्ट्रक्शन होता था जो जहाँ पर रिच लोग रहते थे, दैट वाज कॉल्ड एज व्हाट? सिटाडिल। उसको क्या बोलते थे? एक्रोपोलिस। हाइट पे थोड़ा एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाते थे हाइट पे, और उस पे सब बड़े बड़े पैसे वाले लोगों का, जो बिजनेसमैन होते थे या जो किंग से कनेक्टेड लोग होते थे, जो रॉयल फैमिली के बिलोंग करते थे, उनके घर ऊपर होते थे, थोड़े हाइट पे होते थे, थोड़ा ऐसे स्लोप पे जाके ऊपर होते थे। और नीचे एक जो लोअर टाउन था वहाँ पर कॉमन पीपल रहते थे, मतलब जो काम करने वाले लोग होते, मजदूर लोग हो, लेबर लोग हो, या थोड़े बहुत मार्केट वाले लोग हो, दे वर लिविंग इन दिस लोअर टाउन। सो द 2 पार्ट्स वर the citadel or acropolis which was built on a height, and the lower town. The citadel constructed on a mound, mound मतलब ढलांग जैसा, स्लोप जैसा। The citadel was fortified from all sides. Fortified मतलब चारों तरफ उसके दीवार, बाउंड्री होती थी सेफ्टी के लिए, कि बाहर से कोई भी अंदर एंट्री ना कर सके। अंदर जाना है तो पास दिखाना पड़ता था, सील दिखानी पड़ती थी, उनका मोहर दिखानी पड़ती थी, तभी अंदर जाने वो सिटाडिल में मिलता था। बिकॉज वो एक चारों तरफ से उसको दीवार से 45 का मतलब होता है कवर, बाउंड्री बनाकर। इट हैड मैसिव वॉल्स एंड इट्स हाइट प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड्स। देखो ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवर के बाजू में थी। सिंधु रिवर बहुत बड़ी रिवर है चिल्ड्रन, इंडस रिवर इज़ वेरी बिग रिवर। तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश में क्या हो सकता था? फ्लड्स। तो वो सिटाडिल को, जहाँ पे सब एकदम सब ग्रैनरी होती थी, मतलब गेहूँ अनाज भरा जाता था, सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती थी, उसको इसलिए हाइट पे बनाते थे ताकि उसको फ्लड से कोई इफेक्ट ना हो। So important structures like public bath, granaries, town halls were situated in citadel. The ruling class consisting of rich people, rich merchants, priests, all lived there. और उनको फ्लड से बचाने के लिए इसलिए वो हाइट पे बना गया था। किसकी बात कर रहे हैं? सिटाडिल। व्हाट इज सिटाडिल? सिटी के 2 पार्ट होते थे, मतलब वो शहर के 2 पार्ट होते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 पार्ट्स थे, एक तो सिटाडिल और एक लोअर टाउन। आई होप यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन। नाउ द ग्रेट बात, जो स्पेशलिटी है मोहनजोदारो की, इट वॉज अ स्विमिंग पूल। ग्रेट बात मतलब अपने आज के टर्म्स में उसको बोलेंगे तो स्विमिंग पूल। वो ज़माने में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल को बोला गया था। ग्रेट बात क्या था उसका? रेक्टेंगुलर टैंक मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। बेक्ड ब्रिक, आज हम लोग टाइल्स लगाते हैं ब्लू कलर की, आपने यूजुअली देखा होगा ब्लू कलर की टाइल्स होती है स्विमिंग पूल में। एट दैट टाइम इट वॉज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स सीमेंटेड टुगेदर। द इनर वॉल्स वर मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ बिटुमिन और tar। अंदर का लेयर जहाँ पानी भरते थे उसको, अंदर का जो पोर्शन था, आज हम लोग टाइल्स लगाते हैं ताकि वो पानी से खराब ना हो। तो उस ज़माने में अगर सीमेंट से बना होता था तो धीरे धीरे वो ख़राब हो जाएगा। दैट इज़ वाई उसको ऊपर क्या लगाया गया था? टार। टार बिटुमिन। टार का मतलब होता है जो ब्लैक कलर का जो हम लोग रास्ते पे डालते हैं ना, डामर जैसा। सो दैट टार से पूरा टाइट किया था ताकि वो वाटर लीक ना हो किधर से भी। फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, सीढ़ियाँ, 5-6 सीढ़ियाँ थी, उसको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेप। फ्लाइट मतलब उड़ना नहीं। जब सीढ़ियों के बोलते कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं स्टेप्स। स्टेप्स को क्या बोलते हैं? सीढ़ी। सीढ़ी मतलब स्टेप्स, तो उसके कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। मतलब 5-6 सीढ़ियाँ होती थी दोनों तरफ, ऑपोजिट साइड पे चढ़ने के लिए और नीचे उतरने के लिए, टैंक में जाने के लिए। और
बाजू में स्विमिंग पूल, जो ग्रेट बाथ था उसके आजू बाजू में क्या होता था, क्या होता था, रूम्स, चेंजिंग रूम्स। जैसे आज अपने स्विमिंग पूल के, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो बीच में थोड़ा ब्रेक आ गया आपका, या changing rooms were also found near this great bath. So I hope you understood regarding the swimming pool or the great bath. Now the next topic is the great granary. Granary मतलब जहाँ पर सब अनाज पानी स्टोर होता है, सॉरी, जितना भी फार्मर्स लोग उगाते थे, दैट वॉज एक्स्ट्रा। उधर की जमीन कैसी थी, फर्टाइल। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब रिवर के बाजू में जो जमीन कैसी थी, लैंड वॉज वेरी फर्टाइल, सो प्लेंटी ऑफ क्रॉप्स ग्रू। नाउ दिस प्लेंटी ऑफ क्रॉप्स एक साथ में यूज नहीं होगा, सो इट हैड टू बी स्टोर्ड। अभी स्टोर कहाँ करेंगे, नीचे लोअर टाउन में करेंगे तो फ्लड्स आएंगे, खराब हो जाएंगे। दैट्स वाई इन द सिटाडिल अपर टाउन में बिग बिग बड़े बड़े स्टोर हाउस जैसा, ग्रैनरीज को बोलते हैं, वहाँ पर इट वॉज मेड। एंड वहाँ पे से क्या मिला है लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट को, ग्रेन्स मिले हैं। और वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर भी थे, प्लेटफॉर्म भी थे बड़े बड़े, ताकि उसमें ग्रेन को क्या कर सके, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब अनाज को निकालना, प्लांट में से अनाज को निकालना, वो हो गया थ्रेशिंग ऑफ ग्रेन्स के लिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बने हुए थे। और ये कहाँ से मिला है ग्रेट ग्रैनरी, खास करके हड़प्पा से। जैसे ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है, मोहनजोदारो सिटी में से, वैसे ही ग्रेट ग्रैनरी कहाँ से मिली है, हड़प्पा से। नाउ वी विल स्टडी अबाउट on the next page. It is here on this page you have the meaning citadel, bitumen, granary, ये सब आपको लिखना है चिल्ड्रन, citadel, bitumen और granary। अब ये है next page is on page, see here the lower town. What is that, lower town, page 31 children. I told you what is a lower town. It was designed in a linear pattern with houses made of burnt bricks on both sides of road. See here example is given of drainage system also, and here on this page great bath and great granary was given children on this page, great bath and great granary. And here the houses were 2 stories. स्टोरी मतलब स्टोरी नहीं, कहानी नहीं, स्टोरी मतलब 2 माले का घर, 2 मंजिला। सो द हाउसेज वर ऑफ 2 stories हाई। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड अ कोर्टयार्ड विथ रूम्स, मतलब कोर्टयार्ड मतलब आंगन। उनके घर के बाहर क्या होता था, अंदर रूम्स होते थे, और मतलब रूम्स चारों तरफ रूम होते थे, और बीच में क्या होता था, आंगन, कोर्टयार्ड, बाथरूम, किचन एंड वेल। हर घर में क्या होता था, कुआं, पानी की फैसिलिटी फुल, किचन, बाथरूम, वेल, कुआं, आंगन बीचों बीच, और चारों तरफ रूम्स। एंड दिस पार्ट ऑफ द टाउन वॉज इनहेबिटेड बाय मर्चेंट्स, क्राफ्ट्स पर्सन और लेबरर्स। मतलब जो क्रिएटिव, जो कारीगर लोग होते थे, लेबरर होते थे, उनका ये लोअर टाउन में घर हुआ करता था। सो लोअर टाउन, आई होप यू अंडरस्टूड। इट वॉज डिजाइन इन अ लीनियर पैटर्न, मतलब लीनियर मतलब लाइन से सबके घर होते थे, 2 माले के घर होते थे, 2 stories के, और बर्न्ट ब्रिक से बनाए जाते थे। एंड द नेक्स्ट important feature of this Indus Valley civilization was drainage. The drainage system of every city was well organized. Drainage, आज अपने फिर भी गटर में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। गटर का पानी आप देखो ओवरफ्लो होता है बाहर कितनी बार, बिकॉज ऑफ द not proper construction or not proper maintenance. See here, the drainage system was very well organized. Each town had a well for people to use. There was a room outside the main construction. The water from this room directly went into the covered drain. मतलब drains भी, gutter भी क्या होती थी, ढकी हुई होती थी। The covered drains were cleaned from time to time. और drains को क्या होता था, drainage system को हर बार time to time पहले तो उसको कवर रखते थे, बड़े बड़े पत्थरों से उसको कवर करके रखते थे, and then it was cleaned from time to time. So I hope you understood this architectural features of Indus Valley civilization. The main topic was citadel, that is a town planning. In that included citadel, great bath, great granary, lower town, and the drainage system. These were the important feature of all cities. जितनी भी इंडस वैली में, जितनी भी वो सिविलाइजेशन में सिटी थी अलग अलग, मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोजड़ी, धोलावीरा, लोथल, सब में एक ही टाइप का कंस्ट्रक्शन था चिल्ड्रन। ऑल वर हैविंग द सेम टाइप ऑफ दिस, सिमिलैरिटी तो था ही हर कंस्ट्रक्शन में, इसलिए उसको 2 नाम से बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन चिल्ड्रन। नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ सोशल लाइफ। मतलब वो ज़माने में लोगों की घर की लाइफ मतलब कैसी होती थी, उनकी रिलीजियस लाइफ और घर की लाइफ कैसी होती थी चिल्ड्रन, दैट विल स्टडी। सोशल लाइफ, there are many archaeological evidences to prove that the Indus Valley civilization or society was highly civilized and had urban culture. उन लोग की बहुत अच्छी civilized लोग थे, मतलब एकदम पढ़े, एकदम
बोलते हैं ना मैनर्स वाले लोग थे, और अर्बन कल्चर शहर का कल्चर था, गांव का कल्चर नहीं था. बट दे एट सिंपल फूड लाइक वीट, बार्ली, मिल्क, फ्रूट्स एंड मीट, ये उनके फूड थे. द डिस्कवरी ऑफ कॉटन, क्या मिला है मोहनजोदारो से? कॉटन. और क्ले स्पिंडल, स्पिंडल मतलब चरखा, ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से मिला है. इससे ये पता चलता है कि लोगों को उस जमाने में कपड़ा बनाना था. कॉटन में से कपड़ा बनाना, उसको बोलते हैं वीविंग. क्या बोलते हैं उसको? वीविंग, बिकॉज वहाँ पे चरखे मिले हैं. द मेल फिगर वेयरिंग अ शॉल ऑन हिज शोल्डर गिव्स अस इनफ एविडेंस दैट पीपल हैड अ रिच ड्रेसिंग सेंस. देखो, एक साइड पे शॉल रखना तो वो रिच लोगों की निशानी है. शॉल कैरी करना एक साइड पे, मतलब जैसे लंबा लंबे शॉल्स कैरी करना, सो उससे पता चलता था कि दे वर वेरी रिच. बोथ मैन एंड वुमेन वोर अ ड्रेस मेड अप ऑफ 2 पीस ऑफ क्लॉथ. मैनी ऑर्नामेंट्स, क्या मिला है? और ऑर्नामेंट्स, नेकलेस, इयररिंग्स, बैंगल्स एक्सेट्रा मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, बोन्स, आइवरी हैड्स बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम दिस साइड्स. ये सब टाइप की ज्वेलरी मिली है. कॉटन का स्पिंडल मिला है, कॉटन में से कॉटन क्लॉथ बनाने का स्पिंडल यानी चरखा मिला है. एंड दस वी कैन से दैट बोथ मैन एंड वुमेन वर फॉन्ड ऑफ ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स. मतलब लोगों को ज्वेलरी पहनना पसंद था. इससे पता चलता है कि दे वर वेरी रिच चिल्ड्रन. People also took keen interest in decorating themselves and were familiar with variety of hairstyles and decorative items. मतलब उनके जो पुतले मिले हैं, स्टैच्यूज मिले, उससे पता चलता था कि उन लोग ऐसे सिंपल हेयर नहीं रखते थे. दे वर डूइंग सम और द अदर हेयर स्टाइल ऑन देयर हेयर. वी ऑल्सो ड्रॉ इन्फ्लुएंस फ्रॉम वेरियस आइटम्स सच एज टॉयज, डाइज, डॉल्स एक्सेट्रा. मतलब उसकी जो टॉय वगैरह मिले हैं, डॉल्स वगैरह मिले हैं, इससे पता चलता है कि उन लोग के लोग कितने फैशनेबल थे. उन लोग सब अलग अलग स्टाइल के डॉल को ड्रेस पहनाते थे. दैट द इंडस वैली पीपल वर फॉन्ड ऑफ अम्यूजमेंट एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. मतलब जो टॉयज़ मिले उससे ये पता चलता है कि लोगों को बहुत ही फन लविंग पीपल थे. दे यूज टू एन्जॉय देमसेल्व्स ऑल्सो बाय दिस एक्टिविटीज़. वी कैन से दैट द इंडस वैली पीपल हैड आर्टिस्टिक स्किल्स. और इससे ये भी पता चलता है कि उनके जो कारीगरी, टॉयज़ बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैच्यूज़ बनाते थे, उससे ये पता चलता है कि दे वर वेरी मच व्हाट वी से स्किल्ड. स्किल्ड मतलब एकदम उन लोग सब, उनको सब टाइप का क्राफ्ट वगैरह बनाना आता था उनके ऑर्नामेंट्स वगैरह देखकर. सो दिस वॉज द सोशल लाइफ. एंड नाउ वी कम टू द ऑक्यूपेशन. मतलब हम लोग क्या काम करते होंगे? ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल फॉलोड डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. देर वर फार्मर्स. क्या क्या पता चला? क्या उन लोग थे? फार्मर थे, तो अनाज उगाते थे. वीवर थे, कॉटन में से क्लॉथ बनाते थे. पॉटर थे, नेचुरली बहुत सारे पॉट्स मिले यानी पॉटर्स थे. मेटल वर्कर्स, स्टैच्यू मिले हैं, टेबल मिला है, सब मिला है. टॉयज़ मिले यानी देवर टॉय मेकर्स. बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते, मतलब उन लोग ज्वेलर्स भी थे. और अलग अलग टाइप के स्टोन टूल्स मिले, उससे पता चलता है स्टोन कटर्स भी थे. और बिजनेस भी करते थे, बिकॉज यहाँ के जो पैसे हैं वो अपने को दूसरे देशों में से इसके सील मिले हैं. हड़प्पन और मोहनजोदारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पैसे यूज होते थे, कॉइन्स यूज होते थे, हमें वो कहाँ से मिले हैं? दूसरे देशों में से मिले हैं, मतलब अपने फॉरेन कंट्रीज. मतलब इससे ये पता चलता है कि लोग ट्रेडिंग करते थे. और वहाँ के देश के जो सील थे, सील मतलब कॉइन्स या जो भी उनका मुहर थी, वो हमें कहाँ से मिली है? वो ईरान और इराक की सील हमको कहाँ से मिली है? हड़प्पा में से मिली है, मोहनजोदारो में से मिली है. तो इससे ये पता चलता है कि आप इन लोग ट्रेडिंग करते थे, मतलब बिजनेस भी करते थे. सो द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस क्या क्या थे चिल्ड्रन? आई विल रिपीट. फार्मर्स, वीवर्स, पॉटर्स, मेटल वर्कर्स, टॉय मेकर्स, ज्वेलर्स, स्टोन कटर्स एंड ट्रेडर्स. ट्रेडर्स मतलब बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे. नाउ वी विल लुक अबाउट फार्मिंग. थोड़ा फार्मिंग को डिटेल में करेंगे चिल्ड्रन, बिकॉज फार्मिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. और भी सब मेन ऑक्यूपेशन थे, बट वी विल डू अबाउट वॉट? फार्मिंग चिल्ड्रन. सीयर क्या उगाते थे? दे ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर्ड कैटल. मतलब कैटल भी पालते थे, मतलब गाय वगैरह को भी चराते थे, गाय भैंस को, शीप को वगैरह चराते थे, रखते थे, पालते थे. दे वर कैटल हर्डर्स. दे वर फार्मर्स ऑल्सो. एंड द मेन क्रॉप्स ग्रोन वर वीट, बार्ली, ग्रेन्स, पीज, मेज, मिलेट्स एंड कॉटन. उन लोग क्या यूज़ करते थे फार्मिंग के लिए? प्लाव, सिकल एंड वेरियस मेथड्स ऑफ इरीगेशन. यानी क्रॉप्स को पानी पहुंचाना, उसको बोलते हैं इरीगेशन करना. क्रॉप्स तक पानी पहुंचाना आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब रेन तो आती है, बट व्हेन रेन वाज नॉट देयर they used to supply the water to the crops. That is called as what? Irrigation. So people kept domesticated cattle, sheep and goats, मतलब cow, goat, sheep, goats. And these animals were all the sources of मीट, वूल, मिल्क. मतलब ये एनिमल्स उन लोग पालते किसके लिए थे? वहाँ से उनको मीट मिलता था, वूल मिलता था और मिल्क भी मिलता था. सो फार्मिंग के साथ साथ उन लोग कैटल हर्डिंग भी करते थे. नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज 32. पॉट मेकिंग. देखो, सबसे ज़्यादा बर्तन तो चाहिए ना, यूटेंसिल्स तो चाहिए ना, सब स्टोर करने के लिए, ग्रेन स्टोर करने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए. सो पॉट्स वर मेड एंड पॉटरी हैड रीच्ड एन एडवांस स्टेज. पॉट्स वर मेड विथ फाइन क्ले. एकदम अच्छा वाला क्ले यूज़ करते थे.
उसको फिर शाइनिंग देते थे, ग्लेज करते थे, ग्लेज मतलब शाइनिंग, और उसके ऊपर डेकोरेशन करते थे. यू कैन सी हियर some variety of pots. Many pots were painted red with designs in black and geometric shapes. Geometric pattern से लोग डिज़ाइन करते थे, कलर करते थे रेड कलर, और उसको डेकोरेट करते थे और उसको ग्लेजिंग करते थे, मतलब शाइनिंग करते थे. सो दिस वर द डिफरेंट पॉट्स. नाउ आर्ट एंड स्कल्पचर चिल्ड्रन. आर्ट मतलब कुछ भी तरह तरह के टॉयज बनाना, स्कल्पचर बनाना, स्टैच्यू बनाना. तो ये दो टाइप के स्टैच्यू मिले हैं. एक डांसिंग गर्ल का मिला है और शॉल ओढ़े एक आधी में आधा उसको मिला है, उसको बोलते हैं हम लोग what we say. The other is a dancing of similar to that of what we say shoulder similar to one of kind in मेसोपोटामिया में भी सेम ऐसा स्टैच्यू मिला है. जैसा मोहनजोदारो में से स्टैच्यू मिला है वो आधा मैन का, वैसा ही सेम स्टैच्यू अपने को मेसोपोटामिया से में भी मिला है. इससे पता चलता है कि अपना सब ट्रेडिंग वहाँ पर भी होता था. सो आर्ट एंड स्कल्पचर. मेकिंग टेराकोटा टॉय. सी टेराकोटा का मतलब नीचे दिया हुआ है, रेडिश ब्राउन बेक्ड क्ले. क्ले बेक किया हुआ क्ले, उससे टॉयज बनाते थे, रेडिश कलर का, ब्राउन कलर का. स्टैट्यूट्स एंड फिगराइंस. फिगराइंस मतलब एनिमल्स के अलग अलग शेप्स. फॉर्म्ड अ मेजर इंडस्ट्री. ये भी एक टाइप का उन लोग का काम था, टॉयज बनाना, स्टैच्यू बनाना, फिगर बनाना फ्रॉम टेराकोटा टॉयज. अ लार्ज नंबर ऑफ टॉयज लाइक मिनिएचर कार्ड्स. कैसे टॉयज मिले हैं? मिनिएचर कार्ड्स, डाइज, मार्बल्स, टॉय, बुलक कार्ड्स. मतलब बुलक मतलब टॉय में ही बुलक्स, toy bullocks etc. have been excavated. Two finely struck sculptures works of arts were recovered from Mohenjo-daro. One is the bust. उसको क्या बोलते हैं? आधा जो शोल्डर तक का जो स्टैच्यू होता है, का फुल स्टैच्यू नहीं, शोल्डर तक का जो स्टैच्यू आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बस्ट. व्हाट इज इट कॉल्ड? बस्ट. BUST bust of a man wearing a robe with a shawl clad over one his shoulders similar to one what is finds in Mesopotamia. The other is the figure of a dancing girl made up of bronze. Bronze मतलब दो मेटल को मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज. वो अलग टाइप का मेटल है, कॉपर और उसको ब्रास को मिलाकर जो मेटल बनता है उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज. उससे एक डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू मिला है. दैट इज एज इट इज स्टिल नाउ चिल्ड्रन. उसको जरा भी खराबी नहीं हुई. ये दो स्टैच्यू मिले हैं. और सेम ऐसा बस्ट जो मतलब हाफ स्टैच्यू, बस्ट मतलब शोल्डर तक का जो स्टैच्यू बना हुआ है. नाउ द नेक्स्ट ऑक्यूपेशन इज देयर मेटलर्जी. व्हाट इज दैट? मेटलर्जी. द इंडस वैली पीपल यूज ब्रॉन्ज. क्या यूज़ किया था? ब्रॉन्ज. किसको मिक्स करते थे? कॉपर एंड टीन. क्या मिक्स करते थे? कॉपर एंड टीन. विच वॉज, सी आई टोल्ड कॉपर एंड ब्रास, बट कॉपर एंड टीन चिल्ड्रन, विच वॉज मोर मेलिएबल एंड स्ट्रॉन्गर देन कॉपर. खाली कॉपर नहीं यूज़ करते थे. कॉपर तो कब का डिस्कवर हो गया था? कैल्कोलिथिक एज में. बट उन लोग ने क्या भी नया मेटल यूज़ किया? कॉपर एंड टीन दो मिक्स करके जो बनता है उसको बोलते हैं एलॉय. जब दो मेटल्स मिक्स होते हैं, आपको साइंस में भी पढ़ने में आएगा, when two metals are mixed with each other it is called a what? alloy. तो ब्रॉन्ज क्या है? एलॉय है. एंड वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. कैसा था वो? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. मेलिएबल. मेलिएबल मतलब उसको हम लोग कोई भी शेप में ढाल सकते हैं, स्टैच्यू को कोई भी पिघला सकते हैं, उसको कोई भी शेप में उसको फॉर्म कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मेलिएबल. उसका मीनिंग भी दिया हुआ है नीचे. कोई भी शेप में उसको बना सकते हैं. कॉपर आर्टिफैक्ट्स लाइक रेजर, ब्लेड मतलब रेजर मतलब ब्लेड, हुक्स, सिकल्स एक्सेट्रा एंड एक्सेल्स वर ऑल्सो मेड. ये सब चीज़ें भी कॉपर में से बनती थी. और खास करके स्टैच्यू किस में बनता था? ब्रॉन्ज का. ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर और टीन का क्या है वो? मिक्सचर. कॉपर एंड टीन का क्या है वो? एलॉय. एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी वॉज स्पिनिंग एंड वीविंग. क्या था? स्पिनिंग एंड वीविंग. So now children I will stop here because your video will become too big. From spinning and weaving I will explain you in part 3. ये लेसन के 3 पार्ट है. पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. पार्ट 3 में हम लोग शुरू करेंगे स्पिनिंग एंड वीविंग से चिल्ड्रन. और अब तक मैंने आपको क्या सिखाया आज ये पार्ट 2 के वीडियो में? आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द आर्किटेक्चरल फीचर्स, दैट इज अ टाउन प्लानिंग, सिटाडेल, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, लोअर टाउन ड्रेनेज एक्सेट्रा. I have told you about the social life of people, about the occupation of people. Occupation अपना आधा ही हुआ है. फार्मिंग, पॉट मेकिंग, आर्ट और स्कल्पचर बनाना, और मेटलर्जी. मेटलर्जी मतलब जो मेटल्स में से हम लोग सामान बनाते हैं, मेटल को पिघला कर या मेटल को मिक्स करके जो सामान बनाते हैं, इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, उसको बोलते हैं मेटलर्जी. यहाँ तक मैं स्टॉप कर रही हूँ पार्ट 2 में चिल्ड्रन. ओके, इन द थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो आई विल स्टार्ट